بغداد رضا بن حاجی عمران، میں اپنی موکلہ کے ساتھ بعوض 2500 روپے نقد مہر کے نکاح کرتا ہوں۔ میں نے قبول کیا۔ مرحبا لخت جگر عمران کا دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے چہرہ سجا۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد۔ ایک کیٹرنگ کے کام کرنے والے نے ہمیں بتایا کہ وہ جیسے شادی بیاہ میں جیسے فنکشن ہوتے ہیں اور وہ ناچ گانا ہوتا ہے نا، واللہ ہمارا سارا بنایا ہوا تھا اور میں بھی وہاں تھا۔ میرے سامنے دولہے یا دلہن کا باپ وہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے اس ڈانسنگ فلور جو ادھر لگایا گیا تھا اس کے اوپر باقاعدہ ناچ رہا تھا، شراب کا پیالہ ہاتھ میں تھا، میوزک بج رہا تھا، ناچتے ناچتے شراب کا پیالہ ہاتھ میں، ہارٹ اٹیک ہوا، دھرام سے گرا اور اسی فلور پہ مر گیا۔ عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ دعوت اجڑ گئی، اس کی ساری دعوت اجڑ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم نے کھانا وغیرہ پھر وہ کھلایا نہیں لوگوں کو، یار وہ مر گیا اصل جو آدمی تھا۔ کیا خوشی ہو دل کو چند عزیز تھے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ اگر موت یاد رہے تو ہماری شادی بیاہ غمی خوشی جتنے بھی مواقع ہیں ہاں ہاں ہاں، ان سب کے اندر ہمیں شریعت پر پابندی ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے، کہیں گناہ کرتے کرتے مر نہ جائیں۔ وہ موت اچھی یا بری؟ یعنی اگر آپ اس طرح گناہوں بری محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی آپ کو کہے اس وقت اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ منع کریں گے نہیں نہیں یہاں موت نہیں آنی چاہیے۔ اور آپ آقا کے مدینے میں ہیں، مسجد نبوی شریف میں ہیں، سبز گنبد کے سائے میں کوئی اگر کان میں پوچھے کہ یہاں اگر ابھی موت آ جائے تو ہائے ہائے، تو عاشقوں کی تو پھر یہی آواز ہوگی نا، بس ابھی نکل جائے، ابھی بکی مل جائے مجھے، ایمان و عافیت پر میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ آمین۔ الحمدللہ ہمارے نگران شورا کی شہزادی اور شہزادے کے نکاح کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ویس بن محمد یعقوب نے اپنی موکلہ امینہ مہر نور بنت حاجی عمران کا نکاح
बइवज़ 2500 रुपये नकद मेहर के करता हूँ। आपने कबूल किया? कबूल है। उवैस रज़ा बिन हाजी याकूब, मैंने अपनी मोक्केला बिनते हाजी इमरान का निकाह बइवज़ 2500 रुपये नकद मेहर के किया। आपने कबूल किया? कबूल है। उवैस रज़ा बिन हाजी याकूब, मैंने अपनी मोक्केला बिनते हाजी इमरान का निकाह बइवज़ 2500 रुपये नकद मेहर के किया। आपने कबूल किया? कबूल किया। मुबारक हो, मुबारक हो। आप इनकी तरफ से आपकी बेटी का मेहर बगदाद रज़ा बिन हाजी इमरान, मैं अपनी मोक्केला महानूर बिनते हाजी अशरफ के साथ बइवज़ 2500 रुपये नकद मेहर आपका निकाह करता हूँ। आपने कबूल किया? जी कबूल किया। बगदाद रज़ा बिन हाजी इमरान, मैं अपनी मोक्केला बिनते हाजी अशरफ का निकाह बइवज़ 2500 रुपये नकद मेहर के करता हूँ। आपने कबूल किया? जी कबूल किया। बगदाद रज़ा बिन हाजी इमरान, मैं अपनी मोक्केला बिनते हाजी अशरफ के साथ बइवज़ 2500 रुपये नकद मेहर के निकाह करता हूँ। मैंने कबूल किया। ये इनकी तरफ से वो मेहर पापा की ख्वाहिश थी कि दोनों मदनी बेटों का मेहर मैं अपनी तरफ से अदा करूंगा। मरहबा लख्ते जिगर इमरान का दूल्हा बना, मरहबा लख्ते जिगर याकूब का दूल्हा बना, खुशनुमा फूलों का इनके सर पे है सेहरा सजा। पापा ये सेहरा पढ़ा जा रहा है और मदनी चैनल पर भी हमारे एक तादाद होगी नाजरीन की, तो सेहरा पढ़ते और सेहरे में शिरकत करते वक्त हमारी क्या जज्बात होने चाहिए, क्या नीयत होनी चाहिए? दुआ में जो कैफियत होनी चाहिए वो अल्लाह की बारगाह में आदमी गिड़गिड़ाए, हो सके तो रोए, रोना ना आए तो रोने की सूरत बनाए, कम से कम संजीदा ही रहे, न कि इशारे करे एक दूसरे को। दुआएं ही दुआएं भरी हुई, तो इसलिए इसमें तो जो दुआ है उस पर आमीन कहे, तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह में इस नीयत के साथ हाजिर रहे कि कबूल हो रही है दुआ। अल्लाह से डरना चाहिए। कभी रुखसती तो पता नहीं आपने देखी है या इससे पहले दुनिया से ही रुखसती हो जाए, तो क्या पता यार, कहीं दूल्हे मौत के घाट उतर ही जाते हैं ना। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा अनवर मुझे कहता था कि मुस्कुरायो मुस्कुरायो, लेकिन मैं इतना संजीदा था कि सब हैरान थे कि इसको हो क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको क्या क्या अपनी कैफियत बताऊं। ये खुशियां आर्जी हैं, खाली बुलबुले की तरह यूं करके फट जाए, पता भी नहीं चले। तो इसलिए अल्लाह से डरता रहे बंदा कि जिसको मैं खुशियां समझता हूँ, खुदा जाने वो खुशियां मिलेंगी भी या नहीं। खुदा की कसम, खुशी तो उस वक्त होगी जब आप ईमान सलामत लेकर अपनी कब्र में जाएंगे। असल खुशी वो है, असल शादी वही है कि ईमान सलामत लेकर दुनिया में जाए। बाकी अब दुनिया की खुशियां तो बस आर्जी हैं। अल्लाह ये खुशियां भी नसीब करे और इसमें भी हमको नजर बद से बचाए और गुनाहों से बचाए और हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। बाबा मदनी चैनल इसके दिखाने की जो असबाब हैं, इनमें चंद एक असबाब में से ये भी है कि इस बहाने हमारी नेकी की दावत और इस तरह की चीजें हमारे नाज़रीन तक पहुंचेंगी। हाँ, जाहिर है कि हमने मतलब ये जो किया तो इसमें बहुत सारी नीयतें हैं कि एक तो ये कि जैसे कि हमने ये 4 खानदानों का दिल खुश करने का जहन लिया कि इसमें 4 खानदान खुश होंगे। अब जो दूल्हा है दुल्हन है, इनकी जो इस तरह तरकीब बनी ना, तो अब ये लड़ते हुए भी डरेंगे कि लोग बोलेंगे तुम्हारा तो मदनी चैनल पर निकाह हुआ और तुम ये बद अखलाकी।
तुम यूं, तो ये डरेंगे। ये भी एक लगाम है मदनी चैनल इनके अंदर कि इंशाअल्लाह इस तरह इनकी जिंदगी बेहतर बनेगी और इंशाअल्लाह खुशहालियां नसीब होंगी। तो यूं अलल ऐलान ये मदनी चैनल पर करने से फायदा, फिर मदनी चैनल की ये जीनत है, इससे फायदा हासिल होते हैं। दूसरे चैनल जी नहीं करते तो ये ऐसी गैदरिंग लाएंगे कहां से? इनके पास क्या रखा है? ये बेचारे बस भर के यूनिवर्सिटी के तलबा को लाते होंगे तो खिलाते पिलाते होंगे, इनके पास ये नहीं है। इसमें कोई बड़ा बोल भी नहीं है, नऊजुबिल्लाह, ना मेरा कमाल है। तो दावत इस्लामी एक दीन का काम करने वाली तहरीक है, तो इसके पास गैदरिंग है तो हम दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसके मतलब फवाइद ही फवाइद है और समारात ही समारात। ये तो बेचारे ना कर रहे थे, मैंने इनको मतलब मैंने कहा नहीं यार, मैं तुम्हारे बच्चों के निकाह मदनी चैनल पे पढ़ाऊं। ऐसे मौके पर उमूमन इस तरह के हमें मदनी फूल नहीं मिला करते। हमारे यहाँ जब खुशियाँ होती हैं तो खुशियों में तो जैसे कि एक जुमला हमारे मशहूर है, सब चलता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चलता है, सब नहीं चलता, सब चलता करके बहुत कुछ चलाते हैं। अब ऐसी खुशियाँ, ये एक रोल मॉडल है हमारे लिए अमीर सुन्नत की सीरत, कि इन खुशियों के मौके पर कोई भी हो, उनको मौत याद आनी चाहिए, कब्र याद आनी चाहिए, और ये कि ये खुशियाँ लम्हों के लिए होती हैं, और बाज़ औक़ात ये लम्हों की खुशियों के लम्हात देखते देखते गमों में भी तब्दील हो जाते हैं। इंसान को हर हाल में, हर वक्त, हर कैफियत के लिए तैयार रहना चाहिए। और खुशी हो या कोई भी मौका हो हमारे यहाँ, हमें रब की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। दूल्हा को अगवा कर जाते हैं, ऐन बारात में से उठा जाते हैं, बीमार हो जाता है दूल्हा या दुल्हन, नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। या पहली रात को ऐसा हादसा पेश आ जाता है बेचारों को बाज़ औक़ात, या ऐसा मर्ज घर कर लेता है कि कहीं के नहीं रहते। तो इसलिए अल्लाह ताला से आफियत और आफियत मांगनी चाहिए, अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। ये मैंने किया, ये नहीं। जो भी अपने को नेमत मिली, ये हमेशा याद रखें कि इसको अपना कमाल समझना और इसके जवाल से गाफिल रहना, इसको खुद पसंदी बोलते हैं। और खुद पसंदी के बारे में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खुद पसंदी 70 साल के अमाल को पामाल करती है। यानी जबकि ये ज़हन में हो कि मैंने किया, अल्लाह ने नहीं किया, मैंने किया, और अब इसको जवाल भी नहीं लगेगा, यानी अभी ये छिनेगी भी नहीं। यानी उज्ब बोलते हैं अरबी में इसको उर्दू में खुद पसंदी बोलते हैं। ये आम है आजकल। अब मैं जो करते छुरी फिरती है बकरी में, भूल जाते। इन दावतों में बिलखुसूस औरतों को बड़ा शौक होता है निकलने का, दावतों का बहुत ज़्यादा इनको, मतलब मर्दों के मुकाबले में ये बड़ी फावड़ चलती हैं। और बाज़ औक़ात इनके आगे बढ़ने और इनकी पेशकदमियाँ करने से बहुत सारे गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं। ज़्यादा ऐसे मौक़ों पर या जो भी इस तरह के मौक़े हों, मैं इस्लामी बहनों से ज़रूर मदद इल्तिजा करूँगा कि प्लीज़ अपने घरों में ठहरी रहें और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि घर के अंदर खुशियाँ मनाएं। और अगर निकलने की जहाँ हाजत और ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है और ऐसा है कोई मामला, तो वहाँ पर सख्त पर्दे का एहतमाम हो कि किसी भी सूरत हमारी खुशी हो या गमी हो, मौत मैयतों में बेपर्दगियाँ होती हैं, खुशी हो या गमी हो, किसी मौके पर भी हमारे यहाँ बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। जो घर के बड़े हैं प्लीज़ बराए करम इसको अपने घरों में नाफिज करवाएं। मेरे दोनों बेटों में मैंने कौन सी औरतें जमा की थी? हमने खानदान की औरतों को मैंने नहीं जमा किया था। दोनों बेटों की शादी हो गई, अल्लाह का करम है, मैं दादा बन गया, कोई झगड़े नहीं है, अल्लाह की रहमत है। कोई औरतें जमा ही नहीं की मैंने। आप लोग मैंने मजबूर है, मैं समझता हूँ। तो औरतें क्या मांगती है यार? औरत के लफ्जी माना छुपाने की चीज, और ये फिर औरत को आप शादी में बुलाओ, ये बन ठन कर ना आवे तो ये मर जाए, तो बन ठन के ही आना है। एक से एक कपड़े पहनेगी और लाली पाउडर करेगी और सब कुछ करेगी और वो फिर आएगी। हालांकि जीनत और ये सजावट जो है, ये अगर और कोई माने या शरई ना हो तो ये शोहर के लिए गंधाती होगी, गाभे की तरह मेमनी में बोलते हैं, और अवाम के लिए ये अपने आप को सजाती है और निकलती है बाहर। आई डोंट लाइक, मैं इसको पसंद नहीं करता, मैंने नहीं किया था। दोनों बेटों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया कि एक को भी घुसने नहीं दिया था। मैं पापा हूं ना, रोब चल गया अपना, यहाँ चले, जिसके चले वो चलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ مرحبا لخت جگر عمران کا دولہا بنا مرحبا لخت جگر یعقوب کا دولہا بنا خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا خوش نما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا ان کی شادی ہو رب مصطفیٰ کی شادی خانہ بادی ہو رب مصطفیٰ از پائے غوث الورا بہرے امام احمد رضا کرتی رہے پردہ صدا کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا از تو پہلے حضرت عثمان غنی یہ باحیا تو پہلے حضرت عثمان غنی یہ باحیا کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا پیرن جو غم کی نہ جب تلک چاروں یہاں جیتے رہے سنتوں کی خوب خدمت یہ صدا کرتے رہے خوب بقیے پاک میں چاروں کو مدفن گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا ستائے میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی تجھ سے ہے عطار کے دل کی دعا. یہ بات بار بار یاد آ رہی ہے. 93 میں جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت بھی باپا نے کسی ایک تقریب میں کرم فرمایا تھا اور آج ہماری اولاد کی شادیاں باپا کروا رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے باپا کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. یہ مزید دعوت اسلامی کی اور دعوت اسلامی والوں کی مدنی بہاریں دیکھیں.
ان کے گھر پر، ان کے گھر والوں پر کبھی مشکلات کا سایہ نہ آئے، آسانیاں رہیں، آمین. اور ہمیں ان کی شفقتوں، ان کی محبتوں، ان کی عنایتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.